ان 1000 تیر اندازوں نے کمانوں پر تیر چڑھائے اور ایک ساتھ فائر کر دیا۔ مورخ تبری لکھتے ہیں کہ تیروں کی پہلی ہی بوچھاڑ میں سینکڑوں فارسی فوجیوں کے نعرے چیخوں میں بدل گئے۔ زیادہ تر تیر سیدھے ان کی آنکھوں میں لگے تھے۔ خالد بن ولید کی جو ابتدائی فتوحات تھیں، انہوں نے فارسی سلطنت میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اچھا، صورتحال یہ تھی کہ عراق کے جو بڑے بڑے سردار اور مذہبی رہنما تھے، جیسے پادری سلوبا، وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے؟ جی بالکل، وہ معاہدے کر رہے تھے۔ انہوں نے 20 لاکھ درہم جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرنا بھی قبول کر لیا تھا۔ تو اس طرح جون 633 عیسوی تک دجلہ اور فرات کا جو پورا درمیانی علاقہ تھا وہ اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا تھا۔ یعنی یہ صرف فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامی کنٹرول بھی قائم ہو رہا تھا۔ جی، لیکن اتنے بڑے علاقے کو صرف چند فتوحات سے کنٹرول کرنا یہ تو آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ اسے برقرار کیسے رکھا جا رہا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ایک بڑی زبردست حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنے سب سے تیز رفتار گھڑ سوار دستوں کو پورے علاقے میں گشت پر لگا دیا۔ اچھا، ان کا کام بس یہ تھا کہ کہیں بھی بغاوت کی کوئی چنگاری اٹھے تو اسے شعلہ بننے سے پہلے ہی بجھا دیا جائے۔ یعنی ایک پرو ایکٹیو اپروچ تھی۔ جی بالکل، اسی پیشگی اقدام نے علاقے میں امن قائم رکھا۔ اور جب مسلمان اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے تھے، فارس کے دارالحکومت مدائن میں کیا چل رہا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں صورتحال بالکل الٹ تھی۔ الٹ سے بھی کہیں زیادہ خراب تھی۔ شہنشاہ اردشیر، جو مسلمانوں کی فتوحات سے شدید صدمے میں تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک ماخذ میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس پر نااہل حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اور فارس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی عملی تصویر تھی۔ بالکل۔ یہ جو تخت کے لیے آپس میں قتل و غارت ہو رہی تھی، یہ صرف ایک محلاتی سازش سے تو بڑھ کر تھی۔ جی ہاں۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ فارس کی سلطنت کی بنیادیں اندر سے کتنی کھوکھلی ہو چکی تھیں؟ مطلب خالد رضی اللہ عنہ کو اصل مدد دشمن کی تلوار سے نہیں بلکہ دشمن کی اپنی خودکشی سے مل رہی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوس جو شاہی محل تک میں موجود تھے۔ محل کے اندر؟ جی، شاہی محل کے اندر وہ یہی خبریں بھیج رہے تھے۔ ایک جاسوس کا پیغام تو بہت ہی معنی خیز تھا۔ کیا تھا وہ؟ اس نے لکھا، کسریٰ کا تخت تو اب ایک ایسی کرسی بن گئی ہے جس پر جو بھی بیٹھتا ہے اس کی لاش ہی اٹھتی ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، حقیقت میں ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جی ہاں، پہلے ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا، اگلی صبح اس کا سر دھڑ سے الگ پڑا ملا۔ اچھا۔ اور اس قتل کے شبہے میں درجنوں دربانوں اور محافظوں کو فوراً قتل کر دیا گیا۔ پھر دوسرے شہزادے کی باری آئی۔ جی، اس نے زہر بھری شراب پی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے الزام میں بھی کئی مرد اور عورتیں مارے گئے۔ اور تیسرے شہزادے نے سوچا وہ محفوظ رہے گا، لیکن اگلے ہی دن باغ میں ٹہلتے ہوئے 2 تیر آ کر لگے، ایک آنکھ میں اور دوسرا سیدھا شہرگ میں، وہ بھی ختم۔ 3 شہزادے کچھ ہی دنوں میں قتل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فارس کی سلطنت بغیر کسی حکمران کے رہ گئی تھی۔ بالکل۔ اس خون خرابے کے بعد تو فارسی وزیروں اور جرنیلوں نے ہمت ہی ہار دی۔ تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب کسی کو بادشاہ نہیں بنانا، پہلے مسلمانوں کو روکا جائے جو علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ تخت پر کون بیٹھے گا۔ اچھا۔ انہوں نے اپنی بچی کھچی فوجوں کو دریائے دجلہ کے پار تعینات کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کو روکا جا سکے۔ تو ایک طرف دشمن آپسی لڑائیوں میں اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اپنا بادشاہ تک نہیں چن پا رہا، اور دوسری طرف خالد رضی اللہ عنہ ہے، وہ تو اس موقع کو سونے پر سہاگا سمجھ رہے ہوں گے۔ بالکل، وہ یقیناً سیدھا مدائن پر حملہ کرنا چاہتے ہوں گے۔ ان کا منصوبہ بالکل یہی تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو جمع کر کے کہا کہ دشمن کو سنبھلنے کا ایک لمحہ بھی نہیں دینا۔ وہ حملے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مدینہ سے قاصد آ گیا۔ جی، کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کا ایک قاصد پہنچ گیا، اور وہ ایک ایسا حکم لایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا حکم تھا؟ حکم یہ تھا کہ پیش قدمی یعنی جو ایڈوانس ہو رہا تھا اسے فوراً روک دیا جائے اور ایاز بن غنم کا انتظار کیا جائے۔ ایاز بن غنم؟ وہ تو دمتل جندل کے محاذ پر تھے نا؟ جی، وہ وہاں ایک اور جنگ میں مصروف تھے۔ حکم یہ تھا کہ جب وہ فارغ ہو کر پہنچے
तब दोनों फौजें मिलकर आगे बढ़ें। एक मिनट, खालिद रजी अल्लाह अन्हो को मदीना से हुक्म मिला है कि वो रुक जाएं, और उनका पहला रद्द अमल क्या था? माखिज बताते हैं कि उनके चेहरे का रंग बदल गया। जी, ये एक सिपा सालार के लिए कितना मुश्किल लम्हा होगा कि जब फतह सामने नजर आ रही हो उसे रुकने का हुक्म दे दिया जाए। जी, ये इंतहाई मुश्किल लम्हा था। ज़राए के मुताबिक ये हुक्म सुनते ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा उतर गया। कहते हैं कि उनके चेहरे पर जो हमेशा एक फातिह वाली चमक रहती थी वो एकदम गायब हो गई। और वो गहरी सोच में पड़ गए। जी, पूरे कैंप पर एक सन्नाटा छा गया। लोग हुक्म की वजह से नहीं बल्कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर आने वाले तूफान को देखकर खामोश थे। लेकिन उन्होंने कासिद को जो जवाब दिया वो इस सूरत हाल से भी ज्यादा अहम है। बहुत अहम है। उन्होंने सिर्फ हुक्म नहीं सुना बल्कि उस पर अपना नुक्ते नजर भी वाजे किया। जी, और ये एक लीडर की सबसे बड़ी निशानी है। उन्होंने कासिद से कहा कि खलीफा को मेरा सलाम पहुंचाना और कहना कि जंग के मैदान के हालात वो बेहतर समझता है जो खुद वहां मौजूद हो। दूर बैठकर किए गए फैसले अक्सर लड़ने वालों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या ये हुक्म अदूली यानी डिसोबीडियंस के जुमरे में नहीं आता? ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, नहीं? बज़ाहिर ये रिस्क लगता है, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी अगली बात में सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा, वलीद का बेटा खिलाफत के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगा, लेकिन अगर हालात ने मजबूर किया और इस्लाम को खतरा लाहक हुआ तो मैं किसी एक शख्स के हुक्म की परवाह नहीं करूंगा। मेरी वफादारी अल्लाह के साथ है, किसी बंदे के साथ नहीं। वाह! वो दरअसल अपनी जिम्मेदारी की हुदूद बता रहे थे कि उनका पहला फर्ज इस्लामी फौज को फतह दिलाना है। बिल्कुल, चाहे उसके लिए उन्हें सख्त फैसले ही क्यों न करने पड़े। तो ये सिर्फ एक फौजी फैसला नहीं था, ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। यानी अगर वो 1 महीना भी इंतजार करते तो शायद वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ज्यादा मुनज़्ज़म फारसी फौज का सामना कर रहे होते। बिल्कुल यही उनका मौक़िफ़ था। उन्होंने कासिद को समझाया कि फारसी आपस में लड़के मर रहे हैं, उनका कोई बादशाह नहीं, फौज में खौफ फैला हुआ है, ये हमला करने का बेहतरीन मौका है। और अगर इंतजार किया तो वो अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लेंगे और फिर जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। कासिद को भेजने के फौरन बाद उन्होंने एक कमांडर को दुमता अल जंदल रवाना किया ताकि वहां की असल सूरत हाल मालूम की जा सके। और अपने बाकी सालारों को क्या कहा, क्योंकि उनका मोराल भी तो गिर गया होगा। उन्होंने अपने सालारों को इकट्ठा किया और उनकी हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा कि इस वक्त फारसियों पर हमारा खौफ तारी है और उनकी आपसी लड़ाइयां हमारे हक में है। अगर हमने इंतजार किया तो ये दोनों फायदे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये एक बेहतरीन लीडर की पहचान है जी, कि वो ना सिर्फ स्ट्रैटेजिक फैसले करता है बल्कि अपनी टीम को उन फैसलों के पीछे की मंतिक यानी लॉजिक भी समझाता है। बिल्कुल। तो दुमता अल जंदल से क्या खबर आई? क्या अयाज बिन गनम अपनी मुहिम खत्म करके आने वाले थे? खबर बिल्कुल उलट आई। कुछ ही दिनों में कमांडर वापस आया और उसने बताया कि अयाज बिन गनम को तो खुद मदद की जरूरत है। क्या मतलब? वो एक ताकतवर ईसाई कबीले कल्ब के मुहासरे यानी सीज में फंसे हुए हैं और उनका वहां से जल्द निकलना नामुमकिन है। इस खबर ने तो सारा खेल ही बदल दिया होगा। अब इंतजार करने का कोई जवाज ही नहीं बचा था। इसी लम्हे खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला कर लिया। उन्होंने एक पुरजोश आवाज में ऐलान किया, खुदा की कसम, मैं यहाँ इंतजार में बैठा नहीं रह सकता। मदाइन की दीवारें मुझे पुकार रही हैं, कूच की तैयारी करो। मौरखीन तिबरी और बिलाजरी लिखते हैं कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तबीयत में ठहराव नहीं था। वो हमेशा हरकत में रहते थे और ऐसे नाजुक मौके पर वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। लेकिन अब सवाल ये था कि हमला कहाँ किया जाए। मदाइन तो दूर था और रास्ते में फारसी फौज के मजबूत मराकिज भी थे। यहीं पर उनका जासूसी निजाम एक बार फिर काम आया। जासूसों ने बताया कि फारसी फौज की बड़ी तादाद 2 शहरों में जमा है, एक आइनुल तम्र और दूसरा अंबार। जी, अंबार दरियाए फुरात के किनारे एक बहुत ही मजबूत किला था जो गल्ले के ज़खायर का मरकज भी था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पहले अंबार पर हमला करने का फैसला किया। ये एक हैरानकुन फैसला है। उनके पास कल फौज का सिर्फ आधा हिस्सा यानी 9000 सिपाही थे और वो दुश्मन के सबसे मजबूत किलों में से एक पर हमला करने जा रहे थे। ये उनकी जंगी हिकमत अमली का खासा था।
वो हमेशा दुश्मन की सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ते थे ताकि बाकी खुद ही कमजोर पड़ जाएं। सही। यहाँ एक बात वाज़े करना जरूरी है कि कुछ जराए में लिखा है कि उन्होंने 1 साल इंतजार किया, जी। लेकिन मुस्तनद रिवायात के मुताबिक ये इंतजार 1 महीने से भी कम का था। अच्छा। जून 633 ईस्वी के आखिर में वो 9000 के लश्कर के साथ अंबार की तरफ रवाना हो गए। और रास्ते में उन्होंने वो मशहूर खतूत भी लिखवाए जो उनकी नफसियाती जंग का एक अहम हिस्सा थे। जी बिल्कुल। दरियाए फुरात पार करके उन्होंने 2 खत लिखवाए। पहला खत फारिस के शाही खानदान के नाम था। उसमें क्या लिखा था? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने तुम्हारी बादशाहत को तबाह किया और तुम्हारे इत्तेहाद को तोड़ा। अब निजात चाहते हो तो मदीना की इताअत कबूल कर लो, वरना एक ऐसी कौम का सामना करने को तैयार रहो जिसे मौत उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें जिंदगी। और दूसरा खत पारसी अमीरों और जर्नैलों के नाम था, जिसका लहजा और भी सख्त था। इसमें लिखा था, इस्लाम कबूल करो या जिजिया अदा करो। अगर दोनों मंजूर नहीं तो फिर एक ऐसी कौम से लड़ने को तैयार हो जाओ जो मौत की इतनी ही शौकीन है जितने तुम शराब के। ये सिर्फ धमकियां नहीं थीं, ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन के दिमाग पर हमला था। बिल्कुल। वो बता रहे थे कि तुम्हारा मुकाबला सिर्फ फौज से नहीं, एक नजरिए से है। जब ये लश्कर अंबार पहुंचा तो उनका सामना कैसी सूरत-ए-हाल से हुआ? क्या किला वाकई इतना मजबूत था? वो एक नाकाबिले तस्खीर किला नजर आ रहा था। शहर का हाकिम शेरजाद था, उसके पास एक बड़ी फौज थी। इत्तेहादी ईसाई कबाइल भी उसके साथ थे। शहर के गर्द एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार थी, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट वो खंदक थी। जी, शहर के चारों तरफ खुदी हुई एक बहुत चौड़ी और गहरी खंदक यानी मोट या ट्रेंच थी। जब फारसी फौजियों ने मुसलमानों की कम तादाद देखी होगी तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था? वो दीवारों पर खड़े होकर मजाक उड़ाने लगे। वो ताने कस रहे थे कि अरब के सहरा से निकलकर यहाँ मरने क्यों आ गए हो, वापस चले जाओ। वो खुद को महफूज समझ रहे थे। जी, अपनी खंदक और दीवारों की वजह से खुद को बिल्कुल महफूज समझ रहे थे। इस खंदक को पार करना तो नामुमकिन लग रहा होगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस चैलेंज का सामना कैसे किया? वो बिल्कुल पुरसुकून रहे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर पूरे किले का एक चक्कर लगाया, खंदक की चौड़ाई और दीवारों की ऊंचाई का बगौर जायजा लिया। वो किसी कमजोरी की तलाश में थे। और फिर उन्हें एक ऐसा मंसूबा सूझा जो जंग की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो क्या मंसूबा था? उन्होंने अपने लश्कर से 1000 बेहतरीन तीरंदाज मुंतखब करने का हुक्म दिया। ऐसे तीरंदाज जिनका निशाना कभी खता ना होता हो। 1000? जी। जब वो 1000 माहिर तीरंदाज जमा हो गए तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें एक बहुत ही अजीब हुक्म दिया। सिर्फ आंखों पर तीर चलाने का हुक्म? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये आम जंगी हिकमत अमली से बहुत मुख्तलिफ है। इसके पीछे क्या नफ्सियात काम कर रही थी? क्या मकसद सिर्फ डराना था? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ डराने से कहीं बढ़कर था। हुक्म ये था कि तुम लोग खंदक के करीब ऐसे टहलते हुए जाओ जैसे लड़ाई का कोई इरादा ही ना हो। दुश्मन को गाफिल करने के लिए? जी, ये चाल थी। फिर असल हुक्म दिया, जैसे ही तुम निशाने की जद में आओ, एकदम से और एक साथ दीवार पर मौजूद दुश्मन के तीरंदाजों की सिर्फ आंखों पर तीर बरसाओ। सिर्फ आंखें? ये तो इंतहाई महारत का काम है। और इसका मकसद क्या था? मकसद था दुश्मन के जिस्म से ज्यादा उसकी रूह को जख्मी करना। देखें, एक फौजी का मर जाना एक बात है, लेकिन सैकड़ों फौजियों का एक आंख से अंधा हो जाना एक ऐसा खौफनाक मंजर है जो देखने वालों के हौसले तोड़ देता है। तो इस मंसूबे पर अमल कैसे हुआ? वो 1000 तीरंदाज आराम से टहलते हुए खंदक के करीब गए। दीवार पर खड़े फारसी फौजी उन्हें देखकर हंस रहे थे। उन्हें लगा ये क्या कर लेंगे। जी, और फिर पलक झपकते ही उन 1000 तीरंदाजों ने कमानों पर तीर चढ़ाए और एक साथ फायर कर दिया। और नतीजा? मौरिख तबरी लिखते हैं कि तीरों की पहली ही बौछार में सैकड़ों फारसी फौजियों के नारे चीखों में बदल गए। ज्यादातर तीर सीधे उनकी आंखों में लगे थे। फिर दूसरी और तीसरी बौछार हुई। इसका नतीजा क्या निकला? शहर के अंदर कैसा माहौल था? नतीजा इंतहाई खौफनाक था। शहर में खबर आग की तरह फैल गई कि दीवार पर मौजूद हमारे सैकड़ों सिपाहियों की आंखें फोड़ दी गई हैं। अल्लाह अकबर। जब उन जख्मियों को नीचे उतारा गया तो हर एक की एक आंख में तीर गड़ा हुआ था।
ये मंजर देखकर पूरे शहर पर दहशत तारी हो गई। ये तो नफसियाती जंग का एक मास्टर स्ट्रोक है। आजकल की जबान में हम इसे शॉक एंड ऑ कहते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा टारगेटेड और जाती था। बिल्कुल। ये दुश्मन के हर सिपाही के जहन में ये खौफ बिठा रहा था कि अगला तीर उसकी आंख में भी लग सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस हमले ने फारसी फौज के दिफाही निजाम को तबाह नहीं किया, लेकिन उनके लड़ने के अज़्म को तबाह कर दिया। उनका हौसला मुकम्मल तौर पर टूट गया। और इसीलिए इस जंग को ज़ातुल उयून कहते हैं। जी, ये जंगी चाल इतनी अनोखी और मौसर थी कि तारीख में इस मुहासरे को ज़ातुल उयून यानी आंखों वाली जंग के नाम से याद किया जाने लगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक नाकाबिले तस्खीर नजर आने वाले दिफा को सिर्फ एक हमले में ज़हनी तौर पर फतह कर लिया था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारा कंटेंट मुस्तनद किताबों से लिया गया है और 100% ऑथेंटिक है। हमारी वीडियो तरतीबवार देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ से एपिसोड्स को तरतीबवार सुनिए। और ऐसे ही मालूमात से अरब भरा का सहरा कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।